mathematical expressions. Okay, today I'm going to start some mathematical expressions, and I think last time we discussed one chapter, and that chapter was based on time and work, cistern and pipe. Now today we are going to discuss boat and stream, and that is chapter 505, page number 505. So 505, where it is 50 and 5, yes. So this is the allegation is also there, but before that allegation I am going to solve one question, which is boat and stream. So some formulas of the boat and stream, important formulas are there. First is, if speed is direction of the stream is x, if the direction of the stream, that is x, okay, that is x, direction of this stream, that is x kilometer per hours, okay, and the speed of opposite to this is opposite of this stream. So opposite of this stream, the direction will be y kilometer per hour, okay. Wait a minute. So in the this board I am going to discuss about this boat and stream, okay. If x kilometer per hour is the speed of the, this is the speed of the, this is the speed of the in the same direction, like speed of the stream, this is the speed of the stream, and now in the opposite direction, the speed will be y kilometer per hour, okay. So speed of the stream will be x minus 1 by 2, okay. So this is the formula actually. Now one question is, I am discussing one question here. That question is, speed of a boat is 8 kilometer per hour, and speed of the river, that is 6 kilometer per hour, okay. So what is the speed in the direction of this stream? In the direction of the stream, we need to calculate the speed, same direction, okay. Direction of the stream, we need to calculate the speed, and speed in opposite direction also, and opposite direction also. So see, the speed of the boat we given 8, speed of the river we given 6, okay. So in the same direction it will be 8 plus 6, that will be 14 kilometer per hour, and in the opposite direction that will be 8 minus 3, 2 kilometer per hour. It is very easy question and very simple question also. It is very easy question and very simple question also, okay. So now next question is about the speed of any person in the direction of the stream. So there is a person, and the direction of this stream, there is a person, and the direction of the stream of that person is 10 kilometer per hour, and opposite direction of the stream is given here 6 kilometer per hour, okay. So then what is the speed of still water? In the still water, ठहरा हुआ पानी, in the still water, what is the speed? Okay, so there is a, let the speed of the person in still water is x kilometer per hour, हमने ऐसा माना है, ठीक है. एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम की स्पीड है, दैट इज़ y किलोमीटर पर आवर. इट इज़ इन द स्टिल वाटर,
speed of the steam. So there is a speed in the direction of the steam will be x plus y equals to 10 is given, x minus y equals to 6 is given. Okay, so adding to these two equations, 2x equals to 16 and x equals to 8. We got the x is equals to 8. that means सेकेंड मेथड भी है इसका, 10 प्लस 6/2 एंड आंसर विल बी 8 किलोमीटर पर आवर. जब भी ऐसा दिया गया हो कि स्पीड ऑफ एनी पर्सन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज़ 10 किलोमीटर एंड अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर. स्टिल वाटर का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट है 10 प्लस 6/2 कर लो, 8 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. Now next question is, a boat takes 5 hours to go 40 kilometer in a river. कोई एक बोट है, it is taking 5 hours to complete a 40 kilometer, 5 hours, क्या हो गया, 5 hours to complete the 40 kilometer. Okay. River with a long flow and takes 8 hours to go. अब जैसे एक बोट है, उसे लगा है 5 आवर 40 किलोमीटर में, और जो रिवर है, ठीक है, रिवर विद द फ्लो के साथ जो रिवर जा रही है, ठीक है. सो एंड टेक्स 8 आवर, इसको लगते हैं 8 आवर कितने में, 32 किलोमीटर को कवर करने में. ठीक है. ये डायरेक्शन ऑफ द फ्लो सेम है, फ्लो ऑफ द डायरेक्शन इज सेम. ठीक. तो अब क्या बताना है, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिवर. हमें रिवर की स्पीड बतानी है. यहाँ पर स्पीड किसकी बतानी है, हमें रिवर की. ठीक है. तो सबसे पहले स्पीड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम निकालेंगे. तो स्ट्रीम की तरफ कौन जा रही थी, बोट जा रहा था, तो 5/5 कर देंगे, 40/5. तो स्ट्रीम की आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर. ये आ गई स्ट्रीम की स्पीड. फिर हमें अपोजिट डायरेक्शन में बताना है. ठीक है. तो अपोजिट डायरेक्शन में बताया था इसने कि स्ट्रीम का जो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो था 32 था अपॉन 8 था. इसका मतलब है ये था 4 किलोमीटर पर, ये था हमारा 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सेम डायरेक्शन में क्या था हमारा 40 किलोमीटर, 40/5 कर दिया, 8 आ गया. अपोजिट डायरेक्शन में है 4. ओके. सो हमारा जो डायरेक्शन में फ़्लो है दैट इज़ x प्लस वाई एंड दैट इज़ 8 एंड x माइनस वाई दैट इज़ गिवन द 4. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सोल्व किया. ठीक है. हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई. पहली इक्वेशन आई x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एंड दूसरी आई x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. सो आफ्टर सोल्विंग 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6. आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ द x, y इक्वल्स टू 2. ओके. सो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई. सेकेंड ट्रिक क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ रिवर निकालना हो अगर हमें, तो हमें क्या करना है, x माइनस वाई बाई 2 कर लेना है. x की वैल्यू 8 आई थी, y की वैल्यू 4 आई थी, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 2 किलोमीटर पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, so that will be 2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ ए बोट्समैन टेक्स 4 आवर टू गो 30. अब ये कोई बोट्समैन है, ठीक है, कोई बोट्समैन है. व्हाट्स हैपनिंग,
So one boatsman is there, and a boatsman is taking 4 hours to complete the 32 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो की तरफ जा रहा है, ठीक है. एंड बट इट टेक्स 1 आवर मोर, फिर इसको 1 आवर मोर लगता है टू गो द 30 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन. 1 आवर मोर का मतलब हो जाएगा अब इसको 5 घंटे लगते हैं किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. सो एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी 32/4, दैट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर. और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30/5, दैट मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो x + y/2 करना है हमें, x + y/2. ओके, सो दिस विल बी द स्पीड इन द स्टिल वाटर, and that is equals to 14/2 7. So that is equals to 7 kilometer per hour. So that is equals to 7 kilometer per hour. Okay. थोड़ा सा बारीक करना था. Okay, question number next is the distance between two places. P and Q are the two places. There is a two places. What is happening? Two places are there, and the distance between P and Q is there 72 kilometer. P and Q is there 72 kilometer. Speed of the swimmer in still water. In the still water, the speed is 8 kilometer per hour, and in the opposite flow, that is 4 kilometer per hour. Okay, so this is for opposite, this is for the same direction. Okay, so find out the time to cover the distance in the direction of the stream. तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 72, और टोटल स्पीड हो जाएगा 8 + 8 तो स्टिल वाटर में है, 4 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर, ये टोटल स्पीड है. टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 72. डिस्टेंस से अपन ने स्पीड को डिवाइड किया, तो 6 आवर हमें लग रहे हैं. ओके, सो 6 आवर वी आर टेकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 27 किलोमीटर. स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज, अब स्टिल वाटर में जो स्पीड है दैट इज़ 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की अगर स्पीड जो है, स्ट्रीम की जो स्पीड है दैट इज़ 6 किलोमीटर, दैट इज़ what is happening. So that is 6 kilometer. ओके, सो यहाँ पे हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इज़ 27 किलोमीटर. क्या है, दो प्लेसेस की डिफरेंस है. स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, दैट इज़ स्टिल वाटर में तो है 12 किलोमीटर पर आवर, एंड जो स्ट्रीम की जो स्पीड है दैट इज़ द 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. फाइंड आउट टू गो द अनोदर पॉइंट ऑफ द रिटर्न.
सो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में अगर हमें देखना हो तो सो डाउन स्ट्रीम इज़ 12 + 6 दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। एंड फिर देखना होगा अप स्ट्रीम में जब भी आप देखोगे तो 12 - 6 हो जाएगा, सो इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, वेट अ मिनट, ओके। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इज़ 27 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर ये बोल रहे हैं कि बोट जब स्टिल वाटर में जाता है तो उसको लगते हैं 12 किलोमीटर पर सेकेंड, और जब वो स्ट्रीम्स की स्पीड में जाता है तब इसे लगता है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि देन फाइंड आउट द टाइम टू गो द अनोदर पॉइंट टू द रिटर्न। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस 27 है, फिर हमें पता होना चाहिए अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, दैट विल बी डाउन स्ट्रीम इज़ 12 + 6 मतलब 18 किलोमीटर, अप स्ट्रीम इज़ 12 - 6 मतलब 6 किलोमीटर। सो दोनों को जोड़ेंगे किसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, सो 27/18 कर देंगे टोटल स्पीड को, एंड प्लस करेंगे हम 27/6, ओके। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 108/18 एंड दिस विल बी द 6 आवर्स। 6 आवर इससे टोटल लगते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ रिटर्न होने में, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए बोट इन द स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, दिस स्पीड इज इन द स्टिल वाटर, ओके। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की क्या है, स्ट्रीम की है 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो बोट टेक्स 7 आवर एंड 12 मिनट्स टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड रिटर्न। अब ये ए से बी की तरफ जा रही है, फिर बी से ए की तरफ वापस आ रही है। इसमें इसको टोटल टाइम लग रहा है 7 घंटे + 12 मिनट, मतलब 7×42 720 420 + 12 मतलब 432 मिनट टोटल इसको लग रहे हैं, ठीक है। तो या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि 7 और 12/60, तो इसको हम कह सकते हैं 36/5 टोटल टाइम इसको लग रहा है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो सबसे पहले हमें स्पीड बतानी होगी। एक्स तो क्या मान लिया हमने, टोटल किलोमीटर, तो x/6 प्लस x अपॉन 6 + 4, x/6 + 4 प्लस x/6 - 4, ठीक है। ये करेंगे इक्वल्स टू 35/5। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो x/10 प्लस x/2 इक्वल्स टू 36/5 आ जाएगा, एंड दैट विल बी द x की वैल्यू आ जाएगी 12 किलोमीटर, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो इसको क्वेश्चन क्या था, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4 किलोमीटर है। बोट टेक्स 7 घंटे और 12 मिनट लेती है, तो पॉइंट ए से बी में और बी से ए में रिटर्न होने में, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ऑफ द स्विमर। एक स्पीड है किसकी, स्विमर की। स्पीड ऑफ द स्विमर इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 3 आवर टू गो डाउन स्ट्रीम एंड 9 आवर टू गो अप स्ट्रीम। 3 आवर्स में ये डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएगा एंड 9 आवर्स लगेंगे इसको अप स्ट्रीम की तरफ आने में, ठीक है। देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि x है अगर स्ट्रीम की स्पीड, इन दैट केस द स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 8 + x और अप स्ट्रीम हो जाएगा 8 - x। इट इज़ द डाउन स्ट्रीम, इट इज़ द अप स्ट्रीम, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगा 8 + x एंड इंटू 3 इक्वल्स टू 8 - x इंटू 9। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ये बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ द स्विमर इन 8 km/h, ही टेक्स 3 hours टू गो डाउन स्ट्रीम एंड 9 hours टू गो अप स्ट्रीम, ठीक है। तो हमने क्या किया, 8 + x 3 इक्वल्स टू 8 - x and 9। okay, after solving this 24 + 3x इक्वल्स टू 72 - 9x, ठीक है। फिर इसको अगेन सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 km/h। या इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि 8/x कर लेते हम। 8 तो क्या थी, टोटल स्विमर की स्पीड थी, और फिर ये कह रहा था कि 3 घंटे तो डाउन स्ट्रीम में लगते हैं, तो डाउन स्ट्रीम मतलब 9 + 3 और अप स्ट्रीम मतलब 9 - 3, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में प्लस करते हैं, अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं, तो ये डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा 9 घंटे टू गो एंड 3 घंटे टू गो द डाउन स्ट्रीम, 9 hours टू गो द अप स्ट्रीम। पहले दोनों को जोड़ा, फिर माइनस किया और फिर हमने वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 km/h। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को।